Hi students. So we have already started and we were discussing about the respiratory system in cockroaches. Sorry, excretory system in cockroaches. So in that part we have discussed certain things and we'll continue today and we'll continue and we'll study some other important system in cockroaches as well. So हम लोग पढ़ रहे थे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में जो कि एक्सक्रीशन में वन ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि है हमारे हम जो कॉकरोचेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसमें हमें बहुत सारे बेसिकली देयर आर 4 different types of structures are available which help in the process of excretion in case of cockroaches like Malpighian tubules, fat body, nephrocytes, then uricose glands etc. ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। जो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ रहते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगार्ड एंड हाइंडगार्ड। हाइंडगार्ड और मिडगार्ड के जंक्शन में ये रहता है हमारा ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। और ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? इनका काम है कि इट हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वेस्ट मटेरियल दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट from the body fluid of the cockroach, that is in this case is hemolymph। ठीक है। तो जो hemolymph है उससे जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है कौन? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है। और मैंने क्या बताया था उस दिन? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए all the this is a Malpighian tubule but we have drawn here both the sides. This is midguard, this is hindguard, and where inside this inside the body of the cockroach, it's present that body fluid of the cockroach, that is your hemolymph। ठीक है। अब क्या है? You can see that these Malpighian tubules they have blunt ends। blunt end का मतलब क्या होता है? It finishes at a point, there is a dead end, there is a dead end here। So यहाँ पे ये कहाँ पे है? इसके चारों तरफ क्या है? hemolymph है। अब यहाँ से क्या होगा? hemolymph collect hemolymph से क्या होगा? ये वेस्ट मटेरियल जो है इसको कलेक्ट कर लेगा, नाइट्रोजन और वेस्ट को जो कलेक्ट कर लेगा मैल्पीजियन ट्यूब्यूल इस पॉइंट पे, ये सारे यहाँ पे ठीक है, ब्लंट एंड पे। Then what will happen? It will move all along the length of the Malpighian tubule। यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा and then all the waste nitrogenous waste material will be actually poured inside the through the junction of midgut and hindgut। ठीक है। तो अगर हम इसका सेक्शन लेंगे, ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल का अगर हम सेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हमें दिखेगा कि इट इज मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ सेल एंड दो सेल्स आर लार्ज इन साइज। पहला तो हमें ये मिलेगा इट्स मेड अप ऑफ a layer of cell which are large in size। Second, in the inner surface of that lumen, but we can see that it is these cells are having cilia। Now these cilia are helping they are helping in the better absorption or it helping excretion of nitrogenous waste from the hemolymph, and then it is covered with a extra layer sheath of layer that is called basement membrane। ठीक है। So this is the basic structure and function of Malpighian tubules, right? So I will show you a diagram where the idea and the things what we are discussing it will be more clear। Yeah। So here you can see that what is happening। So this is the midgut and this is the hindgut। So in between there is a junction। Between the junction we are having this Malpighian tubule। So this is the part of Malpighian tubule जो हम देख रहे हैं। और क्या होगा? hemolymph इसके चारों तरफ है, मतलब जो ब्लड है वो इसके चारों तरफ है ना। तो यहां से देखिए कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यू कैन सी द एब्जॉर्प्शन इज हैपनिंग। CO2 एब्जॉर्प्शन हो रहा है, H2 एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम, सोडियम, यूरेट, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लंट एंड में, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, है ना। देन दे विल मूव ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ दिस Malpighian tubules। ठीक है। ये मूव करेगा और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम, सोडियम, ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, वाटर ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो रीएब्जॉर्ब कौन नहीं होगा? सिर्फ यूरिक एसिड रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ब्लंट एंड में जब ये नाइट्रोजनस वेस्ट
एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, हीमोलिम्फ से, बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड है कॉकरोच का, और या ब्लड बोल सकते हैं, उससे जब नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब होता है तो उस समय बाकी बहुत सारे जो सब्सटेंसेस है वो भी उसके साथ आ जाता है, जैसे वाटर आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है उसके बाद नाइट्रोजन सॉरी सोडियम आ जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लेकिन उसमें से जब when these all the substances along with the nitrogenous waste are moving all along the length of this Malpighian tubules, by the time it reaches the junction, that is the midgut and hindgut junction, by the time it reaches, all the important substances are already absorbed. देख सकते हो आप यहाँ पे एरो बनाया है, all the important substances which is required by the cockroach for their normal physiology will be reabsorbed, like bicarbonate, sodium, potassium, water, all the things will be reabsorbed, and the waste material like carbon dioxide, uric acid, they all will continue to move in the same direction. Okay. एक चीज यहाँ पे और भी बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे at the blunt end the value of the pH is not that acidic, but the more it move towards the junction of midgut and hindgut, जितना आगे बढ़ता रहेगा उतना ये कंडीशन एसिडिक हो जाएगा। इससे क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये होता है कि जो यूरिक एसिड जो है ना, यहाँ से जब नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होता है, बाय द टाइम इट रीचेस द junction of midgut and hindgut, this uric acid actually forms crystals, and finally these crystals of the uric acid they will pour inside the through the midgut and hindgut, through the junction of the midgut and hindgut, ठीक है, and then it will reaches the next part, that is the rectum, and from there through the anus it will come out, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको समझना है कि जो रेक्टम है यहाँ से भी जो आपके जो वाटर है वो फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाता है, जैसे हमारे केस में भी हमने देखा है, ठीक है। तो रेक्टम से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो भी रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वे द Malpighian tubule help the cockroach to eliminate the nitrogenous waste from its body, right? So this is all about the nitrogenous waste or the excretory system which is done by the Malpighian tubules, ठीक है। Now apart from these Malpighian tubules, there are some other structures which help in the removal of the waste, nitrogenous waste from the cockroach body. Okay, those are known as urate cell or urate bodies in fat cells, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, यूरेट सेल्स भी कह सकते हैं, यूरेट बॉडीज भी कह सकते हैं, फैट सेल्स भी कह, जो सॉरी ये जो होता है इसमें होता है ये सब यूरेट सेल और यूरेट बॉडीज, इट इज प्रेजेंट इन द फैट सेल्स, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सी, दे रिमूव द वेस्ट मटेरियल बाय स्टोरेज एक्सक्रीशन, तो ये थोड़ा समझना होगा। दे रिमूव द मींस nitrogenous waste or the waste material by storage excretion। इसका मतलब क्या हुआ, स्टोरेज एक्सक्रीशन, इसका क्या मतलब है, पहले स्टोर करता है फिर एक्सक्रीट करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टोरेज एक्सक्रीशन। इसमें होता क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए ये जो सेल्स है, जो यूरेट सेल्स है, ये जो होता है ना, बेसिकली दीज आर इरेगुलर येलो कलर शेप, दीज आर लार्ज इरेगुलर येलो कलर सेल्स, बड़े होते हैं, येलो कलर के होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, it will actually loaded with, okay, or it will filled with the nitrogenous waste, that is the uric acid continuously, ठीक है। और ये तब तक लोड होता रहेगा जब तक ये कंप्लीटली फिल ना हो जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फिल होने के बाद क्या होगा, देखो जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जैसे हमने यहाँ पे आपको थोड़ा डायग्राम फिर से बना के दिखाना होगा मुझे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो आपका हमने पढ़ा था ना कि जो कॉकरोचेस है उनमें प्लेट्स होते हैं ना, एक्सोस्केलेटन होते हैं। एक होता है ऊपर वाला जिसको हम बोलते हैं टर्गम, फिर नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम, फिर साइड में होता है उसे हम बोलते हैं प्लूरा, होता है ना।
तो बेसिकली ये जो यूरेट सेल है ना, आफ्टर इट कंप्लीटली लोडेड, what they will do, they will actually go and settle. I think this color is not visible. Let's see, this is views. This is also not that visible. So होता क्या है कि ये जो यूरेट सेल है, आफ्टर दे गेट लोडेड, दे विल गेट एंड सेटल just under the inner side, just actually the inner side of the exoskeleton. ठीक है, तो exoskeleton के जो inner side है वहां पे जाके ये सेटल हो जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सेटल होने से फिर एक्सक्रीट कैसे होता है, बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखो हम सबको पता है, मैंने जब इंसेक्ट पढ़ाया था, जब आर्थ्रोपोडा मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आर्थ्रोपोडा के बारे में, तो देखा होगा कि जो इंसेक्ट है, स्पेशली दिस कॉकरोचेस, they actually perform a process, a special type of phenomena what we can see in them, that is molting। उनमें ना मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग मतलब क्या है, जो एक्सोस्केलेटन है वो बिल्कुल बदल जाता है और एक नया उनको एक्सोस्केलेटन मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा जब ये पुराना एक्सोस्केलेटन निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, when it is removed, then as a result all the urate cells which are actually attached or present in the inner side of the plates, they will also remove along with these exoskeleton। समझ में आ रहा है ना, मतलब जब तक ये मोल्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये जो यूरेट सेल है along with the nitrogenous waste, they will be present inside the body of the cockroach, and the moment the molting is started, they all will go out from the body along with the exoskeleton। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, they keep storing the uric acid and once they completely loaded with the uric acid, then they go and attach in the inner side or inner surface of the exoskeleton plates, जैसे कि टर्गम, स्टर्नम, प्लूरा etc. इसकी बात करता है। ठीक है, now when the cockroaches undergo molting, अब जब कॉकरोचेस के बॉडी में मोल्टिंग होगा, and that is the time a new exoskeleton is formed, एक नया exoskeleton बनता है, and the old exoskeleton is lost, पुराना exoskeleton वो पुराना जो exoskeleton है वो क्या होगा, the cockroach will lost it, and as a result along with the exoskeleton this urate cell will also go away। ठीक है, so as a result when the turbal plate is lost, with these the urate cells are also lost। ठीक है, so that was the second structure we have discussed। पहला हमने डिस्कस किया था मल्टीजिन ट्यूब्यूल, दूसरा है यूरेट सेल। now we talk about the third structure, third important structure, which is or what we can say the organ also or structure also which help in the process of elimination of nitrogenous waste from the body of the cockroaches, right? So the third structure which help in the removal of the nitrogenous waste from the cockroach's body are known as नेफ्रोसाइट। क्या बोलते हैं उसको हम, नेफ्रोसाइट। इसका दूसरा एक भी नाम है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल सेल। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल सेल, PERICARDIAL, पेरिकार्डियल सेल्स। ओके, नाउ अब ये क्या करते हैं ना, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, they are also the same just like the urate cell। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, they also stores the uric acid। ठीक है, so they are arranged on each side of the heart and hence they are also called pericardial cell। हार्ट के दोनों तरफ अरेंज होते हैं, रहते हैं, इसीलिए इसको पेरिकार्डियल सेल्स भी कहते हैं, बिकॉज these nephrocytes are arranged on each side of the heart and hence they are also called pericardial cells। ठीक है, तो समझ में आया आपको इसको पेरिकार्डियल सेल्स क्यों भी किस लिए कहते हैं, ये भी रीजन है इसलिए कहते हैं। Now the function of these cells is not clearly understood। अब ये सेल बहुत ही अच्छे से, इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, फिर भी they are with excretory in function। तो लेकिन अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है इस समय मानते हैं कि ये करते क्या है, हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ excretion।
ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी जो हमारे पूरा नेक्स्ट प्रीवियस जो हमने पढ़ा था यूनिट से, उसके जैसा ये भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सीक्रेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली। और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो हमने अभी यूनिट सेल में देखा था कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्केलेटन दे आर गेटिंग आउट, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमें अभी तक इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, शायद ये बॉडी में, कॉकरोचेस के बॉडी में हमेशा रहता है, ये कभी बाहर निकलता ही नहीं है, या फिर ये जो कॉकरोच के बॉडी से कभी अलग नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट the nervous system of cockroaches. So next topic we will discuss, that is the nervous system of the cockroaches. देखो सबसे पहले the nervous system of the cockroaches actually divisible into three groups. तीन पार्ट में, तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो ब्रॉडली हम इसे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन मतलब अगर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे या डिटेल में देखेंगे तो हम इसे तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट इन केस ऑफ कॉकरोचेस देयर आर when we talk about the first part, that is सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे। सो इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स लाइक ब्रेन, देन ब्रेन, और बेसिकली ब्रेन तो इनमें वैसा होता नहीं है, कॉकरोचेस में जो है उसको हम ब्रेन नहीं कह सकते, बट उसको हम दूसरे नाम से बुला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। तो दो तरह के बेसिकली मेन गैंग्लियन होते हैं, एक होता है सुप्रा इसोफैजियल गैंग्लियन, दूसरा होता है सब इसोफैजियल गैंग्लियन। थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए जो हेड पार्ट है कॉकरोच का, तो उसके हेड पार्ट में इसोफैगस जहां पे है, ठीक है, इसोफैगस जहां पे है, तो देयर इसोफैगल ट्यूब, तो ऊपर इसोफैगस के ऊपर में जो गैंग्लियन है उसे हम बोलते हैं सुप्रा इसोफैजियल गैंग्लियन, और इसोफैगस के नीचे जो गैंग्लियन उसे बोलते हैं सब इसोफैजियल गैंग्लियन। तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझिए सब इसोफैजियल गैंग्लियन और सुप्रा इसोफैजियल गैंग्लियन क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते। देखिए अब कॉकरोचेस में क्या होता है ना, कॉकरोचेस दे हैव अ वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी टाइम्स द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस, तो आपको याद रखना होगा द कॉकरोचेस हैव अ वेंट्रल डबल कॉर्ड। ठीक है, वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड, तो कॉकरोचेस को वेंट्रल साइड में डबल नर्व कॉर्ड रहता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दिस your peripheral nervous system. अब देखो peripheral nervous system में क्या होता है, it includes the nerves which arises from the ganglia. peripheral मतलब periphery में, ठीक है। तो मेन जो होता है वो तो आपका जो सुप्राइसोफैजियल एंड सबइसोफैजियल गैंग्लियन होता है, और जो आपका पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम उसका मतलब होता है जो nerves which are arising from these ganglion and forming this nervous system, that is called peripheral nervous system। ठीक है, तो मेन जो गैंग्लियन हमने बात कर लिया, एक होता है सुप्रा, एक होता है सब इसोफैजियल गैंग्लियन। इसके अलावा भी कितने गैंग्लियंस होते हैं कॉकरोचेस के बॉडी में, हमें देखना होगा। सो देयर आर कॉकरोचेस हैव ऑलमोस्ट 9 गैंग्लियन which are present and these are fused. These 9 ganglions are present, these are fused. उसमें से जो 3 है, 3 are present in the thoracic region. thoracic region मतलब जो आपका मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ठीक है, हेड के बाद वाला जो पार्ट है वहां पे होते हैं 3, और बाकी के 6 कहां होंगे, 6 are present in the abdomen. Rest of the 6 are present in the abdomen. ठीक है, सो कॉकरोचेस में कितने गैंग्लियन होते हैं, 9 गैंग्लियन होते हैं which are fused in nature, and out of these 9, 3 are present in the thoracic region and 6 are present in the abdomen region. This is very very important, you need to understand
how they are arranged. Now, out of the 6 ganglion which are present in the abdomen, ठीक है, अभी जो 6 गैंग्लियन है इसमें से जो सॉरी which are present in the abdomen, ये 6 ganglion which are present in the abdomen, उसमें से 5 जो है वो सीक्वेंस में रहता है. मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा. मान लीजिए कि ये कॉकरोच का एब्डोमिनल पार्ट है, मान लेते हैं, तो उसमें सेगमेंट्स होगा ना, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 होगा ना. तो उसमें जो पहला जो 5 जो गैंग्लियन है वो नॉर्मली जो सेगमेंट सीक्वेंस है उसी के हिसाब से होगा. जैसे कि फर्स्ट गैंग्लियन यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट में, सेकंड गैंग्लियन सेकंड सेगमेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में. लेकिन इसके बाद जो सिक्स्थ वाला होगा वो बीच में गैप रहेगा. जो सेवेंथ वाला सेगमेंट है उसमें नहीं होंगे, कहां, सॉरी सिक्स्थ वाला सेगमेंट है वो छोड़ के कहां पे होगा. जो सिक्स्थ गैंग्लियन है वो सिक्स्थ सेगमेंट में नहीं होता है, वो सेवेंथ सेगमेंट में होता है. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. तो कॉकरोचेस में जो 10 सेगमेंट होता है एब्डोमेन में, उसमें फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक गैंग्लियन होते हैं. उसके बाद जो सिक्स्थ गैंग्लियन है वो सेवेंथ सेगमेंट में होता है. सिक्स्थ सेगमेंट में कोई भी गैंग्लियन नहीं होता है. दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस. आपको ये याद रखना होगा. ठीक है, चलिए कंटिन्यू. So out of the 6 ganglion which are present in the abdomen, 5 are present in the sequence until the 5th abdominal segment, what I have discussed just now. Only the 6th one is present in the 7th abdominal segment. ठीक है. Now अब देखो, फ्रॉम दी सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो सबसे पहला है ऊपर में, ठीक है, इसोफेगस के ऊपर में सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, इट इज हैविंग 4 नर्व व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर. इस समय 4 मेन नर्व्स हमें मिलेंगे. पहला जो नर्व बोलते हैं एंटीनरी नर्व, दूसरा होता है ऑप्टिक नर्व, तीसरा होता है लैब्रल नर्व्स, चौथा होता है सर्वाइकल नर्व्स. ठीक है. तो एंटीनरी नर्व मतलब होता है इट इज गोइंग टू द एंटीना. कॉकरोचेस में जो एंटीना होता है इट इज एक्चुअली कंट्रोल एंड इट इज कनेक्टेड विद द nervous system. It is connected by the help of this nerve which is arising from the supraesophageal ganglia. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व एंड दिस इज गोइंग टू आईज. ठीक है. देन थर्ड इज लैब्रल, दैट इज गोइंग टू द अपर लिप ऑफ द लिप्स. ठीक है. देन द सर्वाइकल, इट इज गोइंग टू द नेक रीजन. ठीक है. सो यहाँ पे डायग्राम आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस डिस्कस द डायग्राम one by one. Let us discuss the things. So this is a diagram, the same diagram, my bookish diagram. I will also show you after this discussion of this one, this handmade diagram. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गैंग्लियन है, this is the main ganglion, that is your supraesophageal ganglion. इसको हम मान सकते हैं rudimentary brain मान सकते हैं in case of the cockroaches. ठीक है. अब देखो ब्रेन हम इसे नहीं मान सकते, क्यों पता है? ब्रेन हम तभी मान सकते हैं जब किसी एनिमल में जो नर्वस सिस्टम या फिर जो गैंग्लियन है या जो स्ट्रक्चर है मेन हेड में, which is also having the analytical abilities. ठीक है. ऐसा अगर है तो हम उसे ब्रेन मान सकते हैं. उनमें ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज द सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन, बीच में इसोफेगस होता है. नेक्स्ट वी हैव द सब इसोफेजियल गैंग्लियन. ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हो देयर आर द अदर 9 गैंग्लियंस. ठीक है. उसमें से आप देख सकते हो प्रो थोरैसिक गैंग्लियन, देन मेसोथोरैसिक गैंग्लियन, देन मेटाथोरैसिक गैंग्लियन. मतलब तीनों थोरैक्स में जो 3 गैंग्लियन होते हैं वो यहाँ पे है. उसके बाद क्या है? फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट. उसके बाद मैंने क्या बोला था? 6th सेगमेंट खाली रहेगा. फिर जो 6th वाला जो आपका गैंग्लियन है वो कहाँ मिलेगा आपको? 7th सेगमेंट में. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने सेगमेंट्स लिखा हुआ है और इस तरफ मैंने नंबर जो लिख दिया है वो गैंग्लियन का नंबरिंग है सीक्वेंस में. ठीक है. नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि जो सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन है उसमें से 4 नर्व जो है निकलेंगे, 1 2 3 4. पहला है एंटीरियर, दूसरा है ऑप्टिक, तीसरा है लैब्रल, चौथा है सर्वाइकल. ठीक है. एंटीरियर मतलब एंटीना की तरफ जाता है, एंटीना को कनेक्ट करता है. ऑप्टिक मतलब आंखों में जाता है, लैब्रल मतलब लिप्स में जाता है और सर्वाइकल मतलब नेक रीजन को जाता है. ठीक है. तो ये हो गए
दूसरा है जो सब इसोफेजियल गैंग्लियन है, उसमें से भी जो है नर्व फाइबर्स वो अराइज करते निकलते हैं, और वो कहा जाते हैं हमें वो भी जानना पड़ेगा। दैट इज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो फिफ्थ कहा जाता है लैबियल, ठीक है। तो जो लैबियल होता है वो भी लिप्स होता है, दैट इज स्पेशली द लोअर लिप्स। देन वी हैव द मैक्सिलरी, this is going to the maxilla part of the cockroach. Then having the mandibular, and this is going to the mandibular and controlling the mandibular part in the cockroach body, that is mouth part basically, ठीक है। Now apart from that, the next thing what we need to know, that from the segmental ganglion many nerve fibers are arising। आप देख सकते हो ये जो segmental ganglion है इसमें से बहुत सारे nerve fibers निकल रहे हैं, and these nerve fibers are actually going to different parts of the body to control the cockroach, control the cockroach body in a smooth manner, ठीक है। So this is the diagram, you can pause and draw the diagram, okay। So the points after that, so these are the points I have already discussed। So from the subesophageal ganglia arise three important nerves, and namely lumbi, that is going to lower lips, maxilla going to maxillar part, then mandibular going to mandibular part, and from the segmental ganglion arise many nerve supplies to all the body parts। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ये नर्व सिस्टम जाता है, और प्रॉपर जो सप्लाई है वो वहां पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। So this is all about the nervous system in case of cockroaches। Now I will show you a bookish diagram to have a better idea। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the diagram where the first one what you are seeing, this is the supraesophageal ganglion, this is the supraesophageal ganglion, then we have the subesophageal ganglion actually, ठीक है। then it is also called the प्रोथोरैसिक गैंग्लियन भी से कहते हैं। और जो आपका पहला हमने डिस्कस किया, दैट इज योर दी सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन, दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। इसको कॉकरोच का ब्रेन भी मानते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर से तीन नर्व अराइज कर रहे हैं, ऑप्टिक, एंटीनरी, लैब्रोफ्रंटल इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, लैब्रल भी कह सकते हैं और लैब्रोफ्रंटल इज बेटर वर्ड, ठीक है। सो यू करेक्ट इट विद द लैब्रोफ्रंटल नर्व। Then you can find there are some other nerves which are also riding, like mandibular nerves, maxillary nerve, labile nerves, etc. ठीक है। Now next we can see that there is prothoracic nerves which are coming out। This is the prothoracic ganglion। Then this is the ventral cord, this is a double ventral cord, बताया था आपको मैंने कि they have a double ventral cord। तो आप देख सकते हो they have a double ventral cord। Then the mesothoracic ganglion, ठीक है। Then these are metathoracic ganglion, right? And then we have abdominal part where we have the segments। This is the first abdominal ganglion, then second, then third, then fourth, then fifth। इसके बाद जो 7th 6th पोजीशन है वहां पे जाके गैंग्लियन है, 6th में कोई भी गैंग्लियन नहीं है, ठीक है। So this is the basic diagram that we need to understand, okay। Now we will start and discuss the next topic, that is reproduction in cockroaches। तो cockroaches में reproduction कैसे होता है, reproductive structure कैसा है, क्या क्या उसका parts है, वो हम discuss करेंगे। तो male reproductive system भी discuss करेंगे, female reproductive system भी discuss करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इनका जो reproductive system है, process है, वो काम कैसे करता है, ठीक है। इनका interaction कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है हम देखेंगे। तो पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फर्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विल डिस्कस अंडर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोचेस, so if you see it very carefully, so first of all we'll discuss certain points and I will show you the diagram। Then first I will show the handmade diagram, second I will discuss with the bookish and artistic proper diagram, right? Now cockroaches show sexual dimorphism, and that means their sexes are separate। देखो cockroaches जो है ना, they are usually dimorphism, they usually show dimorphism।
ठीक है, एंड दैट मीन्स द सेक्सेस आर सेपरेट। सो डायमॉर्फिज्म हमें जो कॉकरोचेस है उसमें हमें ये दिखता है, द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैन बी सीन, दैट मीन्स द सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इसमें सेपरेट होता है, मतलब मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एक इंडिविजुअल अलग इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म उसमें होगा, और फीमेल भी किसी अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म उसमें होगा। मतलब कॉकरोचेस मेल हो सकते हैं, या तो कोई कॉकरोच मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ठीक है। अब क्या है, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल कॉकरोच में, वो क्या होता है, इट्स अ पेयर ऑफ टेस्टिकल्स। इनमें टेस्टिकल्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट इन द फोर्थ एंड फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दैट दे प्रेजेंट in the fourth and fifth abdominal segments. Okay. Now the testicles are lobe structure. इनके जो testicles होते हैं ना, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल कॉकरोचेस में जो टेस्टिकल्स होते हैं, दे आर बेसिकली लोब स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे लोब होते हैं, तो बेसिकली कितने लोब हमें मिलते हैं, देयर आर 3 लोब बेसिकली, दे आर हैविंग a 3 लोब structure, and the structures, the testicles are present in the fat, buried in the fat. Okay. Now, arising from each testis a narrow tube-like structure. अभी हर दो टेस्टिस है, एक पेयर है, मतलब दो टेस्टिस है, दो टेस्टिस से अलग अलग जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो हमें दिखते हैं, जो कि विच आर कमिंग आउट and going towards the last segment, abdominal segment, that is the last segment, that is abdominal segment, and then these tubes slowly ascend, ये ऊपर की तरफ आता है। इसके बाद एक तो पहले कहाँ चला जाएगा, लास्ट सेगमेंट की तरफ चला जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आना शुरू करेगा। इसके बाद क्या करेगा, आफ्टर इट्स कमिंग आफ्टर द डिसेंट इट गेट join again to form a common duct, ठीक है। नाउ ये जो नैरो ट्यूब है, दीज आर नोन एज वासा डिफरेंशिया। ये जो नैरो ट्यूब्स है जो कि आपके टेस्टिकल से सेगमेंटल जो एब्डोमिनल सेगमेंट की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ आके रीजॉइन हो जाते हैं, तो वो जो नैरो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। और वो जो दोनों वासा डिफरेंशिया आके कॉमन डक्ट बना देता है, उसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं हम उसे, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, तो आपको और आइडिया हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा चीजें, क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो पहला जो है आप देख सकते हो यहाँ पे the testicles, these are 3 lobed testicles, you can see there are 3 lobes, right, and from each testicle we can find a narrow tube which is coming towards the abdominal segment, lower side of the abdominal segment, and then it ascend, ये फिर ऊपर की तरफ जाता है दोनों ही, और देखिए दोनों जुड़ के एक कॉमन डक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। नाउ एट द जंक्शन ऑफ द वास डिफरेंशिया, from where the ejaculatory duct from where the ejaculated duct form a large gland is present। तो जहां पे इजैकुलेटरी डक्ट बनता है तो वहां पे एक बड़ा सा ग्लैंड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है ना, ये बेसिकली बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और ट्यूब्यूल से बना हुआ है। पहला है लॉन्ग ट्यूब्स और ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स made up of that is made up of long tubule, that's called long tubule structure. Then there is these short like structures, and in between the short and the long tubules at the center we can see there are small tubules are also present, okay. So at the junction of the vas differentia, from where the ejaculatory duct form, a large gland is present. Now this gland is made up of 3 different types of tubules, namely there are some peripheral tubules,
which are long in nature, and in the center are present as smaller tubules around the center. On the posterior side, there are some more tubular structures are present, which makes the seminal vesicle. ठीक है, तो seminal vesicle कौन सा है? So around the center on the posterior side, there are some more tubular structures are present, and that is those tubular structures are known as seminal vesicle. तो यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में तो आपको और क्लियर होगा. So these are testicles, हमने बात किया था अभी. These are testicles and these are fat which is surrounding present which are present. So then the next thing what we have, that is the what I have drawn in the blue color, that is your long tubule. Then what I have drawn in black color, that is your seminal vesicle. Then we have that phallic gland. Then we have the phallic gland. तो phallic gland का जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट कर लीजिए आप, PHALLIC, phallic. तो यहाँ पे जो स्पेलिंग होगा वो होगा PHA, यहाँ पे A होगा, E नहीं होगा. So please correct it, PHALLIC, phallic glands. ठीक है. So at the junction of vast difference from where the ejaculatory duct actually comes, or ejaculatory duct from a large gland is present, and this gland is made up of three different types of just a minute, yeah, this gland is made up of three different types of tubules. अब ये gland जो है वो हमें मतलब what we can see, this is made up of three different types of tubules. नाम क्या है? So there are some peripheral tubules which are long and which are long in nature. In the center are present smaller tubules around the center. On the posterior side, there are some more tubular structures are present, which makes the seminal vesicle. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो this large structures, these large tubules are called the long tubules. जो अंदर में रेड कलर का आप देख रहे हो छोटा छोटा, this is our short tubules. Then we have seminal vesicle here, and apart from that, the other things we will also discuss. ठीक है, तो seminal vesicle, we know where is present the seminal vesicle, that also we know. Now after that, seminal vesicle. See, the peripheral long tubular part, or the central short tubular part, and the posterior seminal vesicle part together known as mushroom gland. तो ये जो seminal vesicle part है, उसके बाद long जो आपका tubule का part है, फिर जो small जो part है, that is the short tubule, all together it is known as mushroom gland. इसको सब हम एक साथ क्या बोलते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर को हम एक साथ क्या बोलते हैं? All these tubules are forming a common structure, common gland, that is called mushroom gland. Now the sperms are stores in the seminal vesicle. Sperm जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? They are stores in seminal vesicle. ठीक है, the sperms are stored in the seminal vesicle. Then the ejaculatory duct descend and open through a structure known as male gynophore. Okay, so the sperm are stores in the seminal vesicle. अभी जो sperm है ये store कहाँ होता है? ये store होता है seminal vesicle, जो अभी हमने discuss किया, अभी हमने दिखाया. Now ejaculatory duct, it descend and open through a structure known as male gonopore. ठीक है, सो यहाँ पे वापस आपको डायग्राम में जाना पड़ेगा समझने के लिए. सो जो ejaculatory duct है आप देख सकते हो, this is the ejaculatory duct which is connected here, which is forming by the help of the vas deferens differentia. Now then
then we have this male gonophore. ठीक है, so the ejaculated duct descend and open through a structure known as male gonophore. मतलब ये जो structure है आपके ejaculatory structure, it will continue and it will open at anus, and that is called, through which it opens through a structure that is called male gonophore. Okay, so this ejaculatory duct जो है वो आपका it will continue and it will form another structure, and that is your male gonophore. ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, male gonophore. Right, next, now the male gonophore opens into a sac-like structure, and there is one more gland which is present, and that gland is present in the behind and known as phallic glands. यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, PHALLIC, phallic का स्पेलिंग है PHALLIC, phallic gland. Okay, so the phallic glands, the spelling is, you please correct it. The male gonophore opens into a sac-like structure. Sac-like structure यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में. So the male gonophore, it is having, it's opening into a sac-like structure. Okay, and there is there is one more gland with him. So the male gonophore opens into the sac-like structure, and and there is one more gland which is present. ये जो sac-like structure है वहाँ पे एक और gland होता है, and that gland is present in which is present behind and known as phallic glands. बिल्कुल पीछे जो रहता है gland, इसको बोलते हैं phallic gland. ठीक है, अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे जो टोटल जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड एक साथ, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल और ट्यूब, दूसरा होता है शॉर्ट ट्यूब्यूल और द सिंपल ट्यूब्यूल, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मिडिल वन, right, that is short tubule. So altogether it is known as mushroom gland, and immediately there is a large gland which is present immediately after this. What we can say, that position is just present laterally, बिल्कुल एक के बाद एक रहता है. The duct of the phallic gland is also runs along the length of this ejaculatory duct, and it opens also near to the male gonophore. ठीक है, तो गोनोफोर के, और इस डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ फैलिक. ठीक है, so इसको हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ फैलिक. ठीक है, so this is known as duct of फैलिक. काम क्या है इसका, जो भी सिक्रीशन है फैलिक ग्लैंड का, उसको सिक्रीट करने के लिए ही यूज होता है. ठीक है, चलिए, now the secretion of the phallic gland is released by a tubule or tube which runs very close to the ejaculatory duct. अभी मैंने बताया ना कि बहुत ही पास एक दूसरे के साथ चिपक के रन करते हैं. आप देख सकते हो, रेड में मैंने बनाया है, that is the red one what I have drawn, that is your duct of phallic, जो कि यहाँ phallic से आ रहा है, phallic gland से आ रहा है. दूसरा है that is going to the male gonophore. Okay, fine. So the next thing is this. So the release, the secretion of the phallic gland is released by a tubule which runs very close to ejaculatory duct and opens near to the male gonophore. यही मैंने डिस्कस किया था ना कि जो ejaculatory duct है, बिल्कुल उसके साथ साथ और एक duct होगा जो प्रेजेंट होगा, जो कि किसको कनेक्ट करता है, which is actually connecting the main part. Okay, and near to this, that is known as, and it is known as the duct of phallic gland. Okay, now the sperms are produced in the testis. अब क्या है, जो sperms है वो बेसिक स्ट्रक्चर हमको तो समझ में आ गया, तो अब हम बात करेंगे जो sperm की. तो sperm जो है वो बनता कहाँ है, it forms in the testis, and through the vasa differentia they come into the central part and they get temporarily stored in the seminal vesicle. Now when the sperms are releases, अब जो sperm release होता है, that time what happen, it also has secretion of seminal vesicle, right?
and the secretion of the large tube forms a soft layer round of sperm is present. तो देखो जब स्पर्म होता है, मतलब एक्चुअली जो स्पर्म होता है, विद द स्पर्म आर एक्चुअली रिलीजेस, उसमें क्या होता है, वो बनता कैसे, तो इट इज अ सिक्रीशन एंड ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। और वो सिक्रीशन में क्या होगा कि लॉन्गर ट्यूब एंड सॉफ्ट लेयर्स अराउंड दी स्पर्म्स। अब जो स्पर्म होगा इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगा, और ये जो स्पर्म है इसके साथ और क्या रहेगा, जो सेमाइनल वेसिकल है उसके सिक्रीशन में रहेंगे, और इसके चारों तरफ एक लेयर रहता है जो कि एक्चुअली जो सिक्रीट करता है कौन, स्मॉलर ट्यूब्यूल्स, ठीक है, which are also forms a layer, and that is the outer layer, ठीक है, and that structure is and the same structure is getting deposited in the female body. इसके बाद एक चीज और जानना है, देखो मेल से फीमेल बॉडी में मतलब जब स्पर्म चला जाता है, देन द स्पर्म्स आर एक्चुअली कलेक्टेड एंड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो जो स्पर्म होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, क्लस्टर फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली वो these are surrounded by two layers and these structures are also having an opening from which these sperms can comes out easily, right? And the last point what we need to discuss, as soon as the structure is deposited in the female body of cockroach, the secretion of the phallic gland, spelling ठीक कर लेना, PHALIC, गलत हुआ है हर जगह पे, so the secretion of the phallic gland comes out which hardens the structure, ठीक है, secretion of phallic gland। अभी देखो स्पर्म के साथ और भी सिक्रीशन एक होता है, जैसे हमने देखा सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है स्पर्म के साथ, फिर और एक होता है, ठीक है, दैट इज योर सिक्रीशन ऑफ द योर phallic gland, and as soon as the secretion is comes out, the outermost layer of the sperm, it will be hardened. So next class we'll discuss these things again in little detail, then we'll move on to the next topic. So till then, take care, be at home, stay at home and be safe. Thank you.